ये जो लोअर लिमिट टोपोलॉजी पढ़ाई थी वहां किसी को डाउट तो नहीं है कोई? And also you can actually I have not proved that lower limit topology, this collection of all intervals of the type closed at and open at b where a and b are real numbers. Basically their collection is going to form basis for lower limit topology. So and I have also defined that lower limit topology, how to write the lower limit topology in abstract way. So you can prove it. Take it as home assignment and do it. Now let me start new topic here. That is one of the most important, subspace topology. And then I come to order topology and K topology. So for that, very interesting topology, subspace topology. Whenever a subset is given and topology is not mentioned, this means they are talking with respect to subspace topology. So how to define subspace topology? Yes, subspace topology. So you can see here that how subspace topology is defined. Suppose X be a topological space with a topology script T, and if Y is a subset of X, so the collection, this Y intersection U, where U belongs to, where U are open sets coming from the topology on X on the full space, where U belongs to script T. So in general, if Y is any non-empty set, subset of X, I'm facing some difficulty here on writing this. Anyway, what I'm going to claim here is that look how subspace topology is defined. Suppose Y be a subset of X, then collection of all the elements of Y intersection U where U belongs to script T. Script T is basically topology present on the full space X. So if we start taking intersection of all those, see, script T is the topology on X, and by script T Y we are denoting topology on Y, on its subset. So collection of all the elements of this type Y intersection U where U belongs to script T, that is topology on full space X. This collection is going to form topology on Y called the subspace topology. So with this topology Y is called a subspace of X. ठीक है, तो पहली चीज ये कि ये जो सबस्पेस टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा. यहाँ सिंपली सबसेट है, उस पे ये जो इंटरसेक्शन के साथ यू के स्क्रिप्ट टी जो एक्स के पे जो टोपोलॉजी दे रखी है, उसके हर एक मेंबर्स ओपन सेट होते हैं. उन ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन जब वाई के साथ, वाई यहाँ फिक्स है और यू वेरी कर रहा है ना, स्क्रिप्ट टी में जितने भी यू उन सब का इंटरसेक्शन लेंगे, ये कलेक्शन जो होगा दिस इज बेसिकली गोइंग टू फॉर्म टोपोलॉजी ऑन वाई. So its open set consists of all intersection of open sets of X with Y. ठीक है, तो ये सबस्पेस टोपोलॉजी की डेफिनेशन है. मैं एग्जांपल से इसे एक्सप्लेन करता हूं. दिस वन इज द प्रूफ व्हिच यू कैन इजीली डू. मैं सिंपल वे में ऐसा करता हूं कि देखो क्यों ये स्क्रिप्ट वाई क्यों टोपोलॉजी है. भाई टोपोलॉजी होना चाहिए तो इसमें फाई और वाई होनी चाहिए. वाई पे हम क्लेम कर रहे हैं, वाई पे जो टोपोलॉजी है वो स्क्रिप्ट वाई है. स्क्रिप्ट वाई जो है ये वाई पे टोपोलॉजी है. Sir, can we define through relative topology also the subspace topology? Both are same. Different author calls it with different name. ठीक है, एक ही होता है. कुछ लोग रिलेटिव टोपोलॉजी कहते हैं, सबस्पेस टोपोलॉजी. बोथ आर सेम. In some books you will find the name as relative topology. Okay, look here. I think here it is okay. Yes. Just again, let me recall. So you can for non-trivial case, suppose X is any non-empty set, okay, and X be a topological space equipped with the topology script T, and Y is subset of X. Y is subset of X, and for non-trivial case, let us assume that Y is non-empty. So the claim is that collection of all the elements of the type Y intersection U, where U belongs to script T. Script T is topology on X. Script T is topology on full space X. Actually, what we are going to claim that this notation script T is a topology on full space X, and on Y we are claiming that script tau Y, script Ty, this collection is basically going to form topology on Y, where Y is a subset of X.
ठीक है ना। तो देखो यहाँ y ये फिक्स है, y पे अगर टोपोलॉजी देखनी है, y जहां सबसेट है x का, सो फिक्स y एंड लेट अस टेक इंटरसेक्शन ऑफ ऑल u बिलोंगिंग टू स्क्रिप्ट t। स्क्रिप्ट t कहां पे टोपोलॉजी है? x पे। स्क्रिप्ट t किस पे टोपोलॉजी है? x पे। और टोपोलॉजी का हर एक मेंबर को हम क्या कहते हैं? ओपन सेट। सो लेट अस स्टार्ट टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दोस ओपन सेट्स, ओपन सेट्स फ्रॉम स्क्रिप्ट t विथ y। तो ये जो कलेक्शन है ना, दिस इज बेसिकली गोइंग टू फॉर्म टोपोलॉजी ऑन y। इसे प्रूफ भी कर देख लेंगे, इसका प्रूफ। ठीक है, तो दिस इज हाउ सबस्पेस टोपोलॉजी इज डिफाइंड। तो सबस्पेस टोपोलॉजी से पहली बात मैं ये बता दे रहा हूं, आप लीनियर अलजेब्रा वाला सबस्पेस नहीं समझेंगे, यहाँ डिफरेंट है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी सेम यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहाँ वेक्टर स्पेस ऑपरेशंस वगैरह हैं? नहीं है। सो दिस इज सिंपली सबस्पेस मींस y इज अ सबसेट ऑफ x इक्वल विद सबस्पेस टोपोलॉजी। ठीक है, तो देखो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कहूं कि v बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट टी वाई, मतलब टोपोलॉजी प्रेजेंट ऑन y, v अगर स्क्रिप्ट टी वाई का मेंबर है, दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन u belonging to script t full space topology such that v can be written as y intersection u। ये देखो, अगर मैं ये कहूं कि v जो है ये स्क्रिप्ट टी वाई का मेंबर है, आई मीन टोपोलॉजी प्रेजेंट ऑन y का मेंबर है, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, कम से कम एक u फुल स्पेस पे जो टोपोलॉजी दे रखी वहां से एक ओपन सेट मिलना चाहिए, सच दैट v कैन बी रिटन एज y इंटरसेक्शन u। तो जहां पे आपने y इंटरसेक्शन u फॉर्मेट में लिख दिया तो ये v किसका मेंबर हो जाएगा? स्क्रिप्ट टी वाई का। इसका ये मतलब होता है। ठीक है, नाउ वन कैन शो दैट दिस वन इज गोइंग टू बेसिकली फॉर्म अ टोपोलॉजी। देखो टोपोलॉजी अगर स्क्रिप्ट टी वाई टोपोलॉजी, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इसमें फाई और वाई होने चाहिए। भाई मुझे क्लेम करना है कि वाई पे yes, ये जो कलेक्शन है बेसिकली दिस इज गोइंग टू फॉर्म टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी किस पे शो करना है? वाई पे। वाई पे तो सबसे पहले आपको क्या शो करोगे? फाई बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट टी वाई एंड वाई इटसेल्फ बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट टी वाई। ये तो पहले एक्सियोम है ना। एक्सियोम क्या कहते थे वो पॉइंट्स जिसपे हम रीजनिंग या असर्शन लॉजिक यूज करते हैं। तो तीन कंडीशन थी टोपोलॉजी होने के लिए। सो फाई बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट टी वाई, तो लेकिन फाई अगर स्क्रिप्ट टी वाई का मेंबर है तो फाई मस्ट बी रिटन इन द फॉर्म वाई इंटरसेक्शन यू। So for that you need to show that there exists at least one u with whom intersection y with y is basically phi। तो देख लो ये तो क्लियर कट दिख रहा है। बट ये बताओ कि ये जो x पे आप फुल स्पेस ये जो टोपोलॉजी स्क्रिप्ट इसमें भी तो फाई और x होते हैं। यहाँ पे फाई और x तो हर एक टोपोलॉजी में होते हैं। सो विथ फाई आई हैव प्रोड्यूस्ड एटलीस्ट वन ओपन सेट, empty set from the topology present on x, that is script t with whom which intersection with y is phi। इसका मतलब phi कहाँ मेंबर हो गया? This implies phi is, तो देखो प्रूफ बहुत आसान है, phi t y। उसी तरह y फुल स्पेस कैसे शो करोगे? क्योंकि y x का सबसेट है और x इसमें है यहाँ पे, जिसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा? सो whenever you write it as y intersection u type where u belongs to script t, this means y belongs to script t y। ठीक है ना, स्क्रिप्ट टी वाई। तो फाई और वाई दिखा दिया। अब उसी तरह आप दिखा दो कि आर्बिट्री यूनियन और फाइनाइट इंटरसेक्शन है। सो यूजिंग सेट थ्योरी यू कैन डू दिस। ठीक है ना, जैसे आपको ये शो करना है ना कि ये सपोज v1 वी नीड टू शो दैट v1 v2, एक्चुअली इंडक्शन से दिखा सकते हो, दो को पहले लेके दिखा दो। जैसे v1 v2 है, आप अब जैसे मैंने ये कहा कि v1 बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट टी वाई एंड v2 बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट टी वाई। इसका क्या मतलब हुआ? v1 अगर स्क्रिप्ट टी वाई का मेंबर है, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन u1 सच दैट v1 कैन बी रिटन एज y इंटरसेक्शन u1। यही तो डेफिनेशन। स्क्रिप्ट टी वाई का मेंबर होने का मतलब वो इस फॉर्मेट का होना चाहिए, इस फॉर्मेट का y इंटरसेक्शन u, कम से कम एक u t स्क्रिप्ट t से मिलना चाहिए। स्क्रिप्ट t इज द टोपोलॉजी प्रेजेंट ऑन x। तो जैसे मैंने कहा कि v1 बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट टी वाई, दिस मींस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन u1। यहाँ वन u1 मैंने लिखा तो बस दिस u1 बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट t टोपोलॉजी ऑन x सच दैट v1 इज y इंटरसेक्शन। सिमिलरली देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन u2 सच दैट v2 देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन u2 बिलोंगिंग टू स्क्रिप्ट t सच दैट v2 कैन बी रिटन एज y इंटरसेक्शन u2। ठीक है ना। अब v1 इंटरसेक्शन v2 फिर कितना होगा? अगर मैं कहूं कि v1 इंटरसेक्शन v2, ये भी दिखाना है कि ये कहां जाना चाहिए? स्क्रिप्ट टी वाई में, फाइनाइट
इंटरसेक्शन, आर्बिट्री यूनियन और फाइनाइट इंटरसेक्शन। तो V1 की जगह आप क्या लिखोगे, U1 इंटरसेक्शन, V1 किसके इक्वल है, Y इंटरसेक्शन U1, Y इंटरसेक्शन U1 लिख दो, और इंटरसेक्शन U2 किसके इक्वल है, V1 V2, V2 किसके इक्वल है, Y इंटरसेक्शन U2, Y इंटरसेक्शन U2। अब इंटरसेक्शन की आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर लो इंटरसेक्शन की, तो Y, ये सेट थ्योरी का रिजल्ट Y वैसे ही रहेगा, इट कैन बी रिटन एज Y इंटरसेक्शन U1 इंटरसेक्शन U2। अब ये बताओ U1 कहाँ का ओपन सेट था, स्क्रिप्ट टी का, तो U1 और इंटरसेक्शन U2 U2 भी होगा। क्योंकि वो टोपोलॉजी स्क्रिप्ट की टोपोलॉजी है। यस, तो मैंने एक नया क्लेम कर दिया ना, U1 इंटरसेक्शन U2 स्क्रिप्ट टी से, जिसका इंटरसेक्शन Y के साथ क्या गया, V1 इंटरसेक्शन V2। इसका मतलब V1 इंटरसेक्शन V2 किसका मेंबर हो गया, स्क्रिप्ट टी Y का। आगे समझ में, यस, तो इन दिस वे Yes, sir. यू कैन डू फॉर n, है ना, फिर उन दो को एक एज्यूम करके और इंडक्शन यूज कर लो। सो दैट इज व्हाट रिटन हियर। सिमिलरली यू कैन शो दैट आर्बिट्री इंटरसेक्शन, देखो आर्बिट्री इंटरसेक्शन में इसलिए अल्फा बिलोंग्स टू जे इंडेक्स सेट लिखा है, यहाँ ऐसे नहीं लिखते n इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी, आपको बताया है क्यों, वो तब लिखते हैं जब सेट क्या हो, काउंटेबल। अब इंडेक्स सेट आपका पता नहीं क्या है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, तो वहां पे इस तरह लिखते हैं। यहाँ क्या था, फाइनाइट इंटरसेक्शन था, तो आपने ये n से दिखा दिया। सो यू अल्फा इंटरसेक्शन y, और ये आप सेट थ्योरी का रिजल्ट यूज करके पीछे मैं बता चुका हूं, हिंट दे चुका हूं आज, सो यू कैन डू दिस, है ना। आपने दिखा, क्योंकि वैसे भी देखो ना, ये हर एक यू अल्फा कहां से आ रहा है, एवरी यू अल्फा इज फ्रॉम स्क्रिप्ट टी ऑन x, तो यूनियन ऑफ सच यू अल्फा भी कहां होगा, स्क्रिप्ट टी का मेंबर होगा। यस सर। स्क्रिप्ट टी इज अ टोपोलॉजी ना, हमें टी वाई को टोपोलॉजी प्रूव करना है, स्क्रिप्ट टी इज अ टोपोलॉजी प्रेजेंट ऑन x, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना। तो आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट्स ऑफ स्क्रिप्ट टी ऑन x इज ऑलरेडी ओपन, तो ये यूनियन ओपन हुआ और ये स्क्रिप्ट टी का मेंबर होगा, उसका y के साथ इंटरसेक्शन लेके ये लिख दिया। सो दिस वन इज अगेन आर्बिट्री यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ स्क्रिप्ट टी वाई इज अगेन रिटन इन दिस फॉर्मेट, हेंस इट बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट टी वाई। तो मैंने हिंट दे दिया, अब ये आप खुद से कर लेंगे। मेन टॉपिक पे मैं आता हूं। नाउ क्वेश्चन इज दैट actually this result is very important everywhere, in functional analysis, whatever you are going to learn, whenever subset is given and topology is not mentioned there, this means they are talking with respect to subspace topology, ठीक है। कभी भी अगर सबसेट दे रखा हो और वहां टोपोलॉजी नहीं मेंशन कर रखा है, दिस इंप्लाइज दैट दे आर टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू सबस्पेस टोपोलॉजी, या कहते हैं इंड्यूस्ड टोपोलॉजी फ्रॉम एक्स, या कहीं किसी बुक्स में से रिलेटिव टोपोलॉजी भी, सब नाम एक ही है ना। तो ये, तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि सपोज हाउ टू राइट दिस टोपोलॉजी, सबस्पेस टोपोलॉजी इन टर्म्स ऑफ बेसिस, बेसिस के, जैसे बेसिस के फॉर्म में इस टोपोलॉजी, वो बेसिस क्या होगी जो इसकी सबस्पेस टोपोलॉजी जनरेट करेगी। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, इफ स्क्रिप्ट बी इज अ बेसिस फॉर अ टोपोलॉजी ऑफ एक्स, मतलब एक्स पे टोपोलॉजी जो है वो स्क्रिप्ट टी है और स्क्रिप्ट बी बेसिस है उसके लिए, तो ये जो इसको जनरेट करने वाली ये जो बेसिस है ना, इसके सारे मेंबर्स का, बेसिस मेंबर्स का, इफ यू टेक इंटरसेक्शन विद दिस फिक्स वाई, अगर वाई का बेसिस निकालना है, वाई पे जो सबस्पेस टोपोलॉजी है, वाई का बेसिस मींस वाई पे जो सबस्पेस टोपोलॉजी उसकी बेसिस, सो फिक्स दिस वाई एंड लुक एट ऑल दोस बेसिस मेंबर्स which are going to generate the topology script t on x, तो वो इंटरसेक्शन जो होगा वो सबस्पेस टोपोलॉजी बनाएगा y पे। तो ये रिजल्ट है, ये आप देख सकते हो, ठीक है ना। मान लो u ओपन दे रखा है x में, u is open in x means u belongs to script t, that is topology on x। बात समझ आ गया ये स्टेटमेंट का मीनिंग? यस सर। अभी आपसे कहा है यू ओपन है x में, मींस x पे जो टोपोलॉजी प्रेजेंट है उसका मेंबर है, एंड गिवन y बिलोंग्स टू y इंटरसेक्शन u इंटरसेक्शन y। तो यहाँ पे आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो कलेक्शन है वो दैट इज बेसिकली गोइंग टू फॉर्म अ बेसिस फॉर सबस्पेस टोपोलॉजी। तो इसका मतलब कि सब y पे जो ये जो बेसिस है, तो बेसिस की पहली कंडीशन क्या होती थी याद है, स्पेस के हर मेंबर को कवर करने वाला यहाँ इस टाइप का कलेक्शन चाहिए, पहला तो ये दिखाते थे। एंड व्हेनेवर देयर इज y which is common to two basis members, then there must exist another basis member which is contained to their intersection, याद है? यस सर। तो that is what Yes, sir. given here, है ना। जैसे ये लोगे y from y, so you can always choose member of this type, तो कर लेंगे प्रूफ। और क्योंकि u ओपन है, तो u ओपन है तो आपको बताया था ना कि अगर u ओपन सबसेट x में लेते हो, सो इन टर्म्स ऑफ बेसिस मेंबर क्या था डेफिनेशन,
कि जो उसकी बेसिस दर की वहां से कम एक एलिमेंट मिलना चाहिए जो y को कंटेन करो, खुद इसमें क्या कंटेंट हो। तो b जो Yes. है वो y को कंटेन कर रहा है, और y आपने कहाँ लिया है, y से। तो बताओ y b इंटरसेक्शन y में होगा कि नहीं, और b इंटरसेक्शन y u इंटरसेक्शन y में होगा। बेसिकली आपको ये प्रूफ क्लेम करना है ना कि u इंटरसेक्शन y भी ओपन होगा। तो u इंटरसेक्शन y ओपन होने का क्या मतलब हुआ, u intersection y if is open, then I need to claim that there exists at least one member of this type which contains y and which lies in u intersection y। तो वो इस रिजल्ट से क्लेम कर सकते हो क्योंकि u ओपन है। u ओपन मींस for every y belonging to y, y belonging to x, there exists at least one basis member from this topology, I mean which is going to generate the topology on x which contains y and which is contained into u। तो ये भी रिलेशन ट्रू होगा। इसका मतलब u इंटरसेक्शन y क्या हो गया, u इंटरसेक्शन y इज ओपन, और u इंटरसेक्शन y, या ऐसे भी कह सकते हैं u इंटरसेक्शन y ओपन है ना। तो u इंटरसेक्शन y ओपन है तो आपको क्या शो करना है, कम से कम एक बेसिस मेंबर होना चाहिए इस तरह का। तो वो इस रिजल्ट से आ जाएगा क्योंकि b ऑलरेडी कंटेंट है u में, और यहाँ पे दोनों जगह y फिक्स है, तो ये रिलेशन ऑलवेज होल्ड करेगा। सो दिस यू कैन क्लेम यूजिंग दिस दैट स्क्रिप्ट b y इज अ बेसिस फॉर द सबस्पेस टोपोलॉजी और y। यहाँ देखो जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो मैं अभी आपसे कह रहा था, वो ये लाइन आप रीड कर लें, ये इंपॉर्टेंट लाइन है ताकि आपको when dealing with a space x and a subspace y, subspace y means subset of x equipped with subspace topology। यहाँ पे वो सबस्पेस है, लीनियर अलजेब्रा वाला लीनियर कॉम्बिनेशन वाला नहीं यूज करेंगे, ठीक है ना। one needs to be careful when one uses the term open set। देखो open set with respect to x and open set with respect to y दोनों में डिफरेंस है। अभी मैं डिफरेंस एक एग्जांपल से क्लियर करूंगा, ठीक है। does one mean an element of the topology of y or an element of the topology of x? We make the following definition: if y is a subspace of x, we say that a set u is open in y, a set u is open to in y or open relative to y। तो ये मैंने कहा ना कि सबस्पेस या रिलेटिव दोनों टर्म यूज करते हैं। if it belongs to the topology present on y, u ओपन अगर y के रेस्पेक्ट में होगा, मतलब y पे जो स्क्रिप्ट dy टोपोलॉजी दे रखा u उसका मेंबर होगा। and if this implies in particular it is subset of y, we say u is open in x। open in x means x पे जो टोपोलॉजी है उसका मेंबर होगा, है ना। x with there is a special situation in which every open set in y is also open in x। एक्चुअल में अभी आप देखोगे कि जब सबस्पेस के रिस्पेक्ट में देखोगे ना, सबसेट जो सबस्पेस टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे, सो व्हाट विल हैपन जस्ट लाइक इन मेट्रिक स्पेस जिसे हमने पढ़ा था। अब तक हमने क्या किया कि x पे जो टोपोलॉजी दे रखी थी, तो बाय डेफिनेशन वी विल अज्यूम एवरी मेंबर ऑफ द टोपोलॉजी प्रेजेंट ऑन x टू बी ओपन। अब x का सबसेट y और y का सबसेट u लिया, सो व्हेन u इज ओपन इन y, व्हेन u इज ओपन इन x। अब यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, u y में कब ओपन कहलाएगा, u x में कब ओपन होगा। एंड सेकंड कंडीशन, दैट is it always true that if u is open in y means u is also open in x? So that need not be. So question is what condition we impose on this y on this subset so that every open set u which is open in y is also open with respect to x। open with respect to x or open in x means open with respect to topology present on x। open with respect to y means open with respect to topology present on y, और u इज ओपन इन y। तो शॉर्ट में नोटेशन हम यूज करते हैं, लेकिन जब भी ऐसे लिखे इसका मतलब जो उस पर टोपोलॉजी उसका मेंबर होना चाहिए। तो यहां से ये तीन क्वेश्चन हुए, क्योंकि अब तक हमने क्या पढ़ा था ना, अब तक हमने डायरेक्ट x पे कोई टोपोलॉजी दे रखी हो तो उसके मेंबर को ओपन कहते थे। अब यहाँ दूसरी चीज हो गई, यहाँ x का सबसेट y है, x पे टोपोलॉजी स्क्रिप्ट t है, y पे टोपोलॉजी स्क्रिप्ट t y है, y का फर्दर कोई सबसेट लिया। नाउ वेदर दैट u इज ओपन इन y or whether that u is open in x, under what condition an open set, a set which subset which is open in y is also open in x। तो ये तीन क्वेश्चन अपने आप में यहाँ फ्रेम हुए। अब इन तीन के आंसर के लिए आते हैं। तो एक्चुअल क्या है, देखो ये रिजल्ट है, if y is a subspace of x, subspace of x means subset of x equipped with subspace topology। so if u is open in y, if u is open in y and y is open in x, then every set u is also open in x। क्या कह रहा है कि अगर u y में ओपन है और y x में ओपन है तो every set u is also open in x। पहले रिजल्ट देख लो, फिर अभी मैं समझा देता हूं इसको एग्जांपल से। प्रूफ इसका ये दे रखा है, आसान है।
देखो u अगर जब ओपन दे रहा, u भी ओपन है, सॉरी y अगर ओपन है x में ना, y ओपन इन x का क्या मतलब? अच्छा चलो पहले u ओपन इन y का क्या मतलब? y में ओपन होने का मतलब कि u y देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन v ओपन इन x such that u can be written as y intersection v type. ये तो डेफिनेशन ही सब स्पेस टोपोलॉजी का। u is Yes, sir. open in y का क्या मतलब? y पे कौन सी टोपोलॉजी है? सब स्पेस टोपोलॉजी। तो स्क्रिप्ट y का मेंबर होने के लिए u को क्या होना चाहिए? इस फॉर्मेट का होना चाहिए ना। देखो ना यहाँ डेफिनेशन क्या दिखाया था अभी आपको। स्क्रिप्ट y का मेंबर कैसे क्लेम करते हैं? कम से कम एक u स्क्रिप्ट t से मिलना चाहिए सच दैट इट कैन बी रिटन एज y इंटरसेक्शन u टाइप। तो इस डेफिनेशन को आपको बार बार रिपीट करना है ना। तो u इज ओपन इन y, u इज ओपन इन y मींस u बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट y। तो स्क्रिप्ट y का मेंबर होने के लिए कम से कम एक ओपन सेट x पे जो टोपोलॉजी वहां से मिलना चाहिए जिसका इंटरसेक्शन y के साथ u आ जाए। तो सो दिस वन इज डेफिनेशन, it's already given u is open in y, this means we always have at least one v such that u can be written as y intersection v. Since y and v are both open in x, y v both open है तो y intersection v भी क्या हो जाएगा? ओपन। ये जो v आपने लिया ये ऑलरेडी ओपन है x में, और ये आपको दे रखा y भी ओपन है x है। ये बताओ y और v अगर ओपन है तो y इंटरसेक्शन v भी क्या होगा? ओपन Open होगा। होगा। ओपन होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए पहले काम करते हैं। मैं जो आपको ये कह रहा हूं ना, ये इस एग्जांपल पे आ जाए। मैं चाह तो इसको नए पेज पे लिखना, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, कोई इससे बड़ी चीज नहीं। वो जो मैंने आपसे कहा कि इफ वी हैव सपोज y सबसेट ऑफ x and u subset of y, so when we say that u is open in y and when we say that u is open in x, we have several examples that u is open in y but u need not be open in x. उसको समझने के लिए आप ये इस एग्जांपल देखो, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, आप आसानी से इससे एक एग्जांपल से चीजें रिकॉल हो जाएगी। कंसीडर सबसेट y इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 0 1 ऑफ द रियल लाइन r। ठीक है ना। तो r पे कौन सी टोपोलॉजी है? कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब यूजुअल टोपोलॉजी है। याद है यूजुअल टोपोलॉजी के बेसिस मेंबर क्या होते थे? कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द टाइप ओपन इंटरवल ab। ओपन इंटरवल है। आसान है, आप सिर्फ कंपेयर करते चले जाओ। R पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब टोपोलॉजी कौन सी है? यूजुअल टोपोलॉजी। 0 1 पे कौन सी टोपोलॉजी आएगी? सब स्पेस टोपोलॉजी। y R का सबसेट है ना, तो सब स्पेस टोपोलॉजी में किस तरह के मेंबर ओपन कहलाएंगे? पहले तो ये क्वेश्चन। और क्या y में जो सेट सबसेट्स ओपन है, क्या वो R में भी ओपन है, फुल स्पेस में भी? ये देखना है। तो अब आपको बताया था कि एनी टोपोलॉजी, अगर आपको बेसिस मेंबर मालूम है, अगर आप सारे डेफिनेशन को आप बेसिस मेंबर पे ले आओ, तो बेसिस मेंबर्स ऑलवेज एक तो ओपन होते, पीछे हमने प्रूव भी किया था। एंड वंस यू नो द नेचर ऑफ बेसिस मेंबर, by taking their union you can generate any open set. ठीक है, so let us restrict our definition to basis member. R पे जो यूजुअल टोपोलॉजी होती थी, अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ लो करना क्या है। Y को हमने सब स्पेस टोपोलॉजी दिया, induced from usual topology on R. So subspace topology has basis all sets of the form AB intersection Y. ये क्यों होगा? क्यों? क्योंकि अभी आपको रिजल्ट मैंने बताया था कि अगर किसी सबसेट पे आपको बेसिस निकालना हो, ये जो रिजल्ट था कि अगर स्क्रिप्ट बी बेसिस मेंबर है, एक्स पे जो टोपोलॉजी स्क्रिप्ट टी है उसको जनरेट करने वाला ये बेसिस मेंबर है, तो वाई पे जो सबस्पेस टोपोलॉजी उसका बेसिस मेंबर क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द टाइप बी इंटरसेक्शन वाई वेयर बी बिलोंग्स टू बी, स्क्रिप्ट बी। लेकिन स्क्रिप्ट बी कौन सा टोपोलॉजी जो जनरेट कर रहा है? एक्स पे। तो एक्स पे यहाँ पे आपके केस में यूजुअल टोपोलॉजी है, तो यूजुअल टोपोलॉजी में किस तरह के बेसिस मेंबर्स होते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द टाइप ए बी where AB belongs to real number। यही तो होता है यूजुअल टोपोलॉजी का बेसिस। यस सर। बेसिस मेंबर का Y के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये बेसिस मेंबर किसका बनेगा? सब स्पेस टोपोलॉजी ऑन Y। यहां तक तो डाउट नहीं किसी को? नो सर। देखिए अगर किसी को डाउट है तो बोलते जाए बीच में, सिंपली चीजें बस मैं रिड्यूस करते चला जाऊं, डेफिनेशन फॉलो करना है और देखना क्या किस तरह क्या गया। अब मैंने क्या कहा, तो ये collection of all the elements of AB intersection Y is basically going to form, ये एक AB नहीं, AB के पास चॉइस है R से, so these are uncountable. So, collection of all intervals of the type AB intersection Y where AB is an open interval in R. तो अब क्वेश्चन है कि AB intersection Y के मेंबर होंगे किस तरह? Y क्या आपका क्लोज्ड इंटरवल 0 1। तो देखो यहाँ पे, जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि 0 को कंटेन करने वाले सबस्पेस टोपोलॉजी में
क्लोज इंटरवल 0 1 पे कौन कौन से ओपन सेट होंगे या किस तरह के ओपन सेट होंगे, 0 कंटेन करने वाले। तो ये 0 है आपका, ये 1 है। अब ए बी तो रियल नंबर आर्बिट्रेरी है। अगर मान लो ये ए 0 के लेफ्ट में है और 1 से पहले कट कर रहा हो, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, क्लोज्ड एट 0 एंड ओपन एट बी। ए बी इंटरसेक्शन वाई कैसा आएगा, वाई तो आपका क्लोज्ड इंटरवल 0 1 है ना, ये तो फिक्स है क्लोज्ड इंटरवल 0 1। अब आप ए बी इसको वेरी करा रहे हो, तो ये ए बी तो फ्री है ना, यहाँ पे ए अगर मान लो लेस देन 0 है और बी जो है वो 0 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये पोर्शन तो होगा। यस सर। क्लास से रिस्पांस क्यों नहीं आ रही, इतना मतलब बेसिक चीज पे क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग, तो डाउट है यहाँ पे। तो रियल लाइन की ज्योमेट्री, इसमें में ऐसा क्या है जो नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को। ये तो फिक्स होता है ना, आप ए बी वेरी कराते चले जाओ और देखो डिफरेंट डिफरेंट क्या बनेगा। मैंने कहा 0 कंटेन करने वाले कौन कौन से ओपन सेट बनेंगे वाई में, वाई पे जो टोपोलॉजी सबस्क्रिप्ट, पहले बेसिस मेंबर देख लो, बेसिस मेंबर मालूम है तो आपको ओपन सेट मालूम चल जाएंगे सब स्पेस टोपोलॉजी ऑन वाई के। तो वही लिखा हुआ है, तो देखो वो 0 पे क्लोज्ड और बी पे ओपन, इफ ओनली बी इज इन वाई। बी अगर वाई में, देखो ना बी आपका वाई में, वाई क्या 0 1, बी अगर वाई में है तो ये इस तरह का इंटरसेक्शन आएगा, 0 क्लोज्ड एट 0 एंड ओपन। 1 को कंटेन करने वाले किस टाइप के ओपन सेट होंगे, 1 को कंटेन करने वाले, तो 1 को कंटेन करें 1 पे क्लोज्ड होगा और इधर ओपन होगा। हाँ, तो ये 0 है, ये 1 है, और 1 को कंटेन करने वाला मान लो एक तो ये हो सकता है, ये इंटरसेक्शन आ जाए, तो 1 पे क्लोज्ड और बीच में ये, तो 1 पे ये क्लोज्ड हो गया और ए जो है वो 0 और 1 के बीच में। लेकिन अगर इसको मैं बढ़ा दूं, यहाँ इधर कट कर दूं तो फुल स्पेस भी आ जाएगा, सो दैट इज रिटन हियर y और phi। ये भी हो सकता है ना कि इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो जाए, ये जो y ए बी और y का इंटरसेक्शन ले रहे हो, y तो आपका क्लोज्ड इंटरवल 0 1 है, y तो आपका क्लोज्ड इंटरवल 0 1 है, और ये ओपन इंटरवल ए बी मान लो यहाँ पे ऐसे ले लो a और b, तो इनका इंटरसेक्शन क्या है phi, तो phi भी आ गया। या ऐसे ले लो, ये आपका 0 1 है, यहाँ 0 यहाँ 1 है, और y ओपन इंटरवल ए भी ऐसे ले लो, तो इसके इंटरसेक्शन में y इटसेल्फ आ गया, सो y, सो इफ नाइदर a और नॉर b इज इन y, देखो ना यहाँ पे ये जो y a और b है, ये 1 से बड़ा b ले रहे हो और a जो है 0 से छोटा, तो उस केस में इंटरसेक्शन क्या देखो, फुल स्पेस। और यहाँ पे a b दोनों बाहर ले रहे हो, तो उस केस में इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 5। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे। और क्या होगा जब 0 1, या आप 0 और यहाँ 1 लिया और ओपन इंटरवल ए बी ऐसे ले रहे हो, ए और बी के अंदर, ए बी बोथ बिलोंग्स टू 0 1 या y, तो इंटरसेक्शन में ओपन इंटरवल ए बी इटसेल्फ आ जाएगा। अब यहाँ नोटिस करो, ये सब बेसिस मेंबर्स आए, ये 0 को कंटेन करने वाले बेसिस मेंबर इस तरह के होंगे, 1 को कंटेन करने वाले बेसिस मेंबर इस तरह के होंगे, फुल स्पेस y phi and all open intervals of the type AB where AB is in Y, AB is in Y। अब इन बेसिस मेंबर्स में एक चीज, और बाकी जो ओपन सेट होंगे वो इनके यूनियन से जनरेट होंगे। तो यहाँ पे एक नोटिस करो यहाँ पे, और आपको बताया था कि एवरी बेसिस मेंबर इज ऑलवेज एन ओपन सेट, बेसिस मेंबर भी तो ओपन होते हैं। Yes, sir. ये Yes, sir. अगर आप इस बेसिस मेंबर को नोट करो, क्लोज्ड इंटरवल 0b, तो ये जो बेसिस मेंबर है क्लोज्ड इंटरवल 0b, ये जो बेसिस मेंबर है क्लोज्ड इंटरवल 0b, 0 पे क्लोज्ड और 0 कंटेन करने जो बेसिस मेंबर सब स्पेस टोपोलॉजी का, दिस 0b इज ऑफ द फॉर्मेट y इंटरसेक्शन ab। ये 0b किस फॉर्मेट का है, y इंटरसेक्शन ओपन इंटरवल ab। तो क्योंकि आपने y इंटरसेक्शन ओपन इंटरवल ab टाइप का लिख दिया, दिस इंप्लाइज दिस 0b बिलोंग्स टू द बेसिस मेंबर ऑफ द सब स्पेस टोपोलॉजी, ठीक है ना, क्योंकि y इंटरसेक्शन ab टाइप का आ गया। सो दिस वन इज ऑल्सो मेंबर ऑफ, और बेसिस भी मेंबर होते हैं सब स्पेस अपने टोपोलॉजी के। तो 0 to b ये ओपन हो गया विथ रिस्पेक्ट टू y बस, बट कैन दिस 0 बी ओपन विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल टोपोलॉजी? नो सर। यूजुअल टोपोलॉजी में बेसिस मेंबर्स क्या होते हैं, कलेक्शन बेसिस मेंबर क्या होता है, ओपन इंटरवल्स, और बाकी जो ओपन सेट होंगे या तो ओपन इंटरवल्स होंगे या उनके यूनियन से जनरेट होगा। तो ये एक ऐसा सेट हुआ जो y पे सब स्पेस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में तो ओपन है, बट नॉट ओपन विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल टोपोलॉजी, बट नॉट ओपन। लेकिन ये एक ऐसा सेट आया जो सब स्पेस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में भी ओपन है, और x पे जो यूजुअल टोपोलॉजी उसके रिस्पेक्ट में भी ओपन है।
तो यहाँ पे ये अगर u को मैं ये ले लूं क्लोज्ड एट 0 एंड ओपन एट 1, so this is open with respect to subspace topology on y closed interval 0 1, but not open with respect to r, the standard topology या usual topology जिसे कहते हो। तो ये आपको मैंने काउंटर एग्जांपल दे दिया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि थोड़ा सा इसके सोचो, ये सब आसान चीजें आप बना के देख सकते हो। हिंट मैंने दे दिया, इतना बहुत होता है। देखो 1000 भी एग्जांपल करा दूंगा आपको कोई फायदा नहीं होगा, 8-10 एग्जांपल से कोई टॉपिक क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप बैठ के खुद इस पे वर्कआउट करो, कोई ऐसी टफ चीज नहीं है, रियल लाइन की ज्योमेट्री है, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के मत पढ़ा करो चीजें। बेसिस को हमने रेस्ट्रिक्ट इसलिए कर दिया कि बेसिस जब मालूम है तो इनके यूनियन से बाकी ओपन सेट मिल जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि एक्चुअल होता क्या ना कि जब एब्स्ट्रैक्ट स्पेस हो तो वहां पे आसान ये होता है कि आप बेसिस मेंबर पे चीजें वर्कआउट कर लो। अब ये आपको समझ में आ गया। अब एक काम करना, यहीं पे आप क्लोज्ड इंटरवल 0-1 की जगह पे ना ओपन इंटरवल 0-1 लेके देखना। ओपन इंटरवल 0-1 आर में ओपन होता है कि नहीं? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Okay. तो ये जो इंटरसेक्शन लोगे ना तो हर जगह यहाँ पे भी ओपन मिल जाएगा, यहाँ पे भी ओपन मिल जाएगा। तो आप देखोगे जितने भी बेसिस मेंबर आ रहे हैं वो सबके सब ओपन आ रहे हैं। तो ये जो रिजल्ट है ना, अब इस रिजल्ट पे दोबारा आ जाओ, क्या कहता है। सपोज u is subset of y and y is subset of x. So if u is open in y and y is open in x, then u will be also open in x. But in general it is not true. अगर y खुद ओपन है x में तो ऐसे जितने भी सबसेट्स होंगे जो y में ओपन होंगे वो x के रेस्पेक्ट में भी ओपन होंगे। x के रेस्पेक्ट में ओपन मींस तो उसके टोपोलॉजी के मेंबर होंगे। So that is what written here, that if y be a subspace of x, if u is open in y and y is open in x, then u is also open in x. इसी तरह क्लोज्ड के लिए भी ट्रू है, ठीक है। Yes, sir. देख लें यहाँ पे, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लें इसको। अच्छा ये बताओ डिस्क्रीट टोपोलॉजी को की बेसिस मेंबर्स क्या होते हैं? सर वो U के नहीं, X interval के ऐसे सबसेट होते हैं जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट और 5 होता No, I am talking about discrete topology. है। सॉरी सर। सर सिंगलटन जितने भी होंगे। हाँ, कलेक्शन ऑफ ऑल सिंगलेटन्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल सिंगलटन। सिंगलेटन्स। चलो ठीक है। चलो आप लोगों को एक पहले मैं तो अगर आपके पास बेसिस मेंबर है जो सिंगलेटन्स आगे कलेक्शन ऑफ ऑल सिंगलेटन्स, तो उनसे उनके यूनियन से हर एक सेट आप जनरेट कर सकते हो, हर एक सबसेट। तो टोपोलॉजी कौन सी आएगी? डिस्क्रीट। अगर आप ये शो कर दो कि एवरी सिंगलेटन इज ओपन, दिस मींस टोपोलॉजी विल बी डिस्क्रीट, ठीक है ना, टोपोलॉजी विल बी डिस्क्रीट। अब एक काम करो यहाँ पे एक कुछ बुक्स में से मैं अलग अलग कुछ एग्जांपल बता दूं ताकि थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो जाए कैसे देखना है, सबस्पेस टोपोलॉजी कैसे पहचानना है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 25 करो, क्वेश्चन नंबर 25, ताकि आपको एक ज्योमेट्रिक आइडिया हो जाए करना क्या है। पढ़ ले इसे, क्वेश्चन नंबर 25। सर पूरा पेज नहीं आ रहा है स्क्रीन पे। स्क्रीन विजिबल नहीं है? पूरा सर क्वेश्चन नहीं आ विजिबल रहा है। सर। विजिबल तो है। है। ठीक, मैं ये कह रहा हूं कि ये देखो क्या दिया है। Let script V be the class of half open rectangles in the plane R2. A less than equal to x less than b, c less than equal to y less than d. A पे देखो ये वाला x equal to a, x equal to a, ये मतलब ये वाला साइड इंक्लूड है। फिर y equal to c, ये मतलब x जो है x एक्सिस पे a to b है, x एक्सिस पे a to b है, जहां पे a वाला पॉइंट इंक्लूड है और b एक्सक्लूडेड है, इसलिए डैश 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 दिखाया हुआ है। y जो वेरी कर रहा है वो c to d, y c वाला तो इंक्लूड है और ये d ये वाला ओपन है ना। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट से ये पूरा पोर्शन फॉर्म होगा। ये बाउंड्री पॉइंट्स नहीं है, ये बाउंड्री पॉइंट्स नहीं है, ये दोनों हैं और साथ में इनसाइड।
इस तरह के सारे ओपन रेक्टेंगल्स का कलेक्शन, इस तरह के सारे ओपन रेक्टेंगल्स का, हाफ ओपन रेक्टेंगल्स का कलेक्शन, ये शो करना, ये बेस है टोपोलॉजी के लिए। R2 पे टोपोलॉजी मतलब स्टैंडर्ड टोपोलॉजी का बेस कह रहे हैं। तो बेस तो आप देख सकते हो ना, ज्योमेट्रिकल पहले देख लो भाई। स्पेस से आपको R2 मींस प्लेन, प्लेन का किसी पॉइंट के अराउंड ऑलवेज यू कैन फाइंड मेंबर्स ऑफ दिस टाइप। कर सकते हैं कि नहीं ऐसा ज्योमेट्री हमेशा? पहले कंडीशन बेसिस का पूरा हो गया। Yes. और जब भी दो हैं, और जब भी दो हैं ऐसे मान लो, तो इसके अंदर हमेशा आप तीसरा ढूंढ सकते हो, दिख रहा है ज्योमेट्री से। सो यू कैन डू Yes. फॉर एवरीवन। तो यहाँ पे एक हिंट दे दिया। मैं इस क्वेश्चन को समझाना चाह रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों क्या है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि मैं सोचना कैसे। शो दैट द रिलेटिव टोपोलॉजी और सबस्पेस टोपोलॉजी ऑन ए टाउ ए है ना, ऑन द लाइन ए वेयर सबसेट क्या दे रखा है, एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। देखो ये कौन सा लाइन होगा? अगर ए की ज्योमेट्री बनाओ तो इसमें ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जो y इक्वल टू -x पे लाई कर रहे हैं। मतलब R2 में y इक्वल टू -x ये लाइन हो गया, y इक्वल टू -x ये लाइन हो गया। इस पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स का कलेक्शन ये सेट है ए। सेट ए क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स वाई विच लाइज ऑन y इक्वल टू -x। ये शो करना है कि इस स्पेस पे, इस सबसेट पे जो रिलेटिव टोपोलॉजी या जो सबस्पेस टोपोलॉजी है, बेसिकली वो क्या है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? Yes. Yes, sir. अक्सर इस तरह क्वेश्चन देखोगे तो नेट गेट इन सब में मिलता है। बहुत आसान होता है अगर ज्योमेट्री से थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो, तो फिर बाद में मैं लिख के भी दिखा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा एक आइडिया पहले सेटअप करो कि करना क्या है। तो अब आपको अगर आप मतलब डेफिनेशन का, इसके वो जो सिंगलटन होंगे सर, बेसिस मेंबर इसके सिंगलटन्स होंगे। हाँ, डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए आपको क्या शो करना है कि इसके बेसिस मेंबर क्या होंगे? कलेक्शन ऑफ ऑल सिंगलेटन्स। मतलब ओपन सेट तो सिंगलेटन्स और सिंगलेटन्स के यूनियन से। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हर एक सबसेट ओपन होता है, याद है? इनफैक्ट पावर सेट ही तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। तो आप ये दिखा दो कि सारे सिंगलेटन्स ओपन होंगे, अगर ये आप शो कर दो तो टोपोलॉजी कौन सी जनरेट हो जाएगी? डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो मैं ये दिखा रहा था कि अब डेफिनेशन क्या कहता है। अगर मान लो आपको ए पे टोपोलॉजी है दिखानी है, ए पे टोपोलॉजी, तो डेफिनेशन स्क्रिप्ट टोपोलॉजी ऑन, मान लो एक्स आपका R2 है, यहाँ पे x इक्वल टू R2 है, और R2 पे जो आपका टोपोलॉजी वो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी दे रखा है, या यूजुअल जिसे कहते हो, है ना, ये दे रखा है। एक्स आपका R2 और उस पर टोपोलॉजी जो स्टैंडर्ड या यूजुअल, जो भी नाम दे दो, स्टैंडर्ड या यूजुअल, और R2 का ये सबसेट है, ये R2 का सबसेट है, इस पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स। मुझे ये शो करना है कि ऑन दिस लाइन द टोपोलॉजी स्क्रिप्ट टाउ इज द डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी के मेंबर्स कैसे होंगे? ए को फिक्स कर देते हैं और यू को वेरी कराते हैं, याद है? ए इंटरसेक्शन यू, जिस पे देखना होता है, जैसे वाई पे देखना था, अभी किया था, ए पे देखना है, तो ए को फिक्स कर देते हैं इसको, और यू को वेरी कराते हैं, वेर यू बिलोंग्स टू, यू कहां से आएगा? स्क्रिप्ट ई क्या है? टोपोलॉजी प्रेजेंट ऑन R2, मतलब स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। तो ये उसके लिए ये बेसिस दे रखा है R2 की टोपोलॉजी। अब इस बेसिस के रेस्पेक्ट में देखना है, बेसिस जरूरी थोड़ा ना यूनिक हो, ठीक है? चलो, ये फिर यू को वेरी कराना है। अच्छा, अगर इसका बेसिस में कहता, इस टोपोलॉजी को जनरेट करने वाला बेसिस क्या होगा, तो बेसिस क्या होगा? एक्चुअली यू बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट टी है, बेसिस कहेंगे तो मैं इस बेसिस के रेस्पेक्ट में अगर देखना चाहूं तो बेसिस इस तरह हाफ ओपन रेक्टेंगल्स, तो ये ए इंटरसेक्शन और बेसिस बी लिख दो, वेयर बी बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट बी, क्योंकि ये भी तो बेसिस प्रूफ किया, ये सोचना है। ए इंटरसेक्शन लिखो, मैं बार बार यूनियन लिख दे रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये ए फिक्स है, मतलब ए फिक्स होने का मतलब क्या होगा? आपको लाइन आपने फिक्स कर दिया, और इस तरह के हाफ ओपन रेक्टेंगल्स के साथ इंटरसेक्शन लोगे, तो देखो होगा क्या, जब आप इंटरसेक्शन लेना शुरू करोगे इस लाइन के साथ, ये लाइन तो आपने फिक्स कर दिया, ए को तो फिक्स कर दिया, और बेसिस मेंबर दे रखे हैं इस तरह के हाफ ओपन रेक्टेंगल्स, इस तरह के हाफ ओपन रेक्टेंगल्स। तो एक सिंपल सी ज्योमेट्री अगर आप देखो तो इंटरसेक्शन तो और भी होगा, लेकिन इस तरह से जैसे जब आप हाफ ओपन रेक्टेंगल्स लोगे ना, तो उसके इंटरसेक्शन में ये सिंगलेटन आ जाएगा। जैसे इस सिंगलेटन को लाना है तो ये लाके ऐसे कट कर दो, और तो होंगे ही होंगे, ये भी सिंगलेटन आ जाएगा। मैं कर सकता हूँ नहीं ऐसा हमेशा? यस सर। जैसे आप कोई कहे कि सर और भी तो होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं और भी होंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे ये y इक्वल टू एक्स है,
अगर आप ऐसे लाके कट कर दो, मान लो ये ओपन है दोनों ही, यहां से लेके यहां तक ये पूरा मिल जाएगा इंटरसेक्शन में, क्योंकि रीजन भी है ना, तो ये इंटरसेक्शन मिल जाएगा। लेकिन ये तो मिलेगा, लेकिन ये इन सारे सिंगलेटन्स के यूनियन से जनरेट हो जाएगा नहीं ओपन सेट। भाई आपको जब सिंगलेटन्स मिल गया तो सिंगलेटन्स के यूनियन से तो मैं किसी भी सेट को जनरेट कर सकता हूं ना। Yes. Yes. तो आपको कलेक्शन में जब सिंगलेटन्स मिल गया तो बाकी ओपन सेट को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंगलेटन अगर सारे सिंगलेटन एज अ बेसिस मेंबर मिल गए तो टोपोलॉजी कौन से जनरेट होगी, डिस्क्रीट। आगे समझ में? Yes, sir. Yes. सिंपली ज्योमेट्री देखो, वाई इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी टाइप के मेंबर किस तरह के होंगे। बी आपका ये बेसिस मेंबर है ना, ओपन हाफ रेक्टेंगल्स, और ए फिक्स कर दिया, तो इसको वेरी कराते चले जाओ और ए को फिक्स रखो, तो आपको देखो किस किस तरह के बेसिस मेंबर्स मिल रहे हैं। और जो और ओपन सेट्स होंगे वो इन बेसिस मेंबर्स के यूनियन से जनरेट हो जाएंगे। तो आएंगे तो ये इस तरह वाले भी, लेकिन ये वाले लिखने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि ये सारे सिंगलेटन से जनरेट हो जाएंगे। इस तरह की जैसे आपको ये जनरेट करना, तो आप इस तरह ओपन रेक्टेंगल से इंटरसेक्शन ले लो, ये भी सिंगलेटन आ जाएगा। ये सिंगलेटन जनरेट करना ऐसे ले लो, तो एक मैंने ज्योमेट्री रफ डायग्राम बना दिया। यहाँ पे सारे सिंगलेटन्स क्या ओपन, क्योंकि हर एक सिंगलेटन को आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी फॉर्मेट में, हेंस दे आर ओपन। सब स्पेस टोपोलॉजी के मेंबर ओपन कब कहलाते हैं या बेसिस मेंबर कब कहलाता है, जब ए इंटरसेक्शन बी टाइप का हो, वेयर बी बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट बी। और ओपन कब कहलाएगा, व्हेन इट इज ऑफ द टाइप ए इंटरसेक्शन यू बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट टी। तो हो तो गया, तो टोपोलॉजी डिस्क्रीट। लेकिन y इक्वल टू अगर x रख दो तो टोपोलॉजी डिस्क्रीट, मतलब कोई और टोपोलॉजी होगी लेकिन डिस्क्रीट नहीं होगी। तो देखो y इक्वल टू x ये लाइन हुआ ना, y इक्वल टू x ये लाइन हुआ। अब बेसिस मेंबर देखो, इस तरह के ओपन रेक्टेंगल्स लोगे जब इंटरसेक्शन, इस तरह के मिल रहे हैं। कहां सिंगलेटन मिल रहे हैं, सिंगलेटन हर एक सिंगलेटन ओपन है जरूरी नहीं, क्योंकि आप इस पे लेके कट भी करोगे ना ये हाफ रीजन से, तो यहाँ पे क्लोज और यहाँ पे ओपन मिल रहा है, सिंगलेटन्स नहीं मिल रहे हैं। इसलिए टोपोलॉजी कोई और होगी बट इट विल नॉट बी डिस्क्रीट, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी तो बेसिस मेंबर्स ऑलवेज कलेक्शन ऑफ ऑल सिंगलेटन्स होगा। हो सकता है अभी आपको चीजें टफ लग रही हो, थोड़ा सा रिवाइज करो। इस तरह नहीं पढ़ोगे ना तो एग्जाम के क्वेश्चन नहीं बीट कर पाओगे, वहीं रह जाओगे जहां से स्टार्टिंग किया था। आपको ये वो हिंट दे रहा हूं जिससे किसी भी कंपटीशन में भी आप कल के इंटरव्यू में जाओ तो ऑन स्पॉट आप सोच सको। क्वेश्चन मुमकिन में भी एक्सरसाइज दिया, मेरे पिछले साल के लेक्चर में, रिकॉर्डेड लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आपको यहाँ पे एक हिंट दे दिया, इतना हिंट बहुत होता समझने के लिए कैसे देखना है। चलो सोचना इस पे, आपस में आप लोग डिस्कस करो, उसके बाद फिर दोबारा मुझसे डिस्कस कर लेना। मैंने कुछ किया नहीं, सिंपली डेफिनेशन फॉलो किया, ज्योमेट्री बना दी, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं जो इतना मैं कॉम्प्लिकेटेड बना के बताऊं इसे। हाँ अब मैं ये कह रहा था, दो एग्जाम्पल और देखो। सब स्पेस टोपोलॉजी ऑन Z फ्रॉम R। कितना टाइम, हाँ 10:45 है ना। अगली क्लास किसकी है आप लोगों की? Functional analysis. फंक्शन जावेद सर की है। Yes, sir. Jairus, sir. Yes. अब दो पार्ट यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूं आपको। एक तो सेट ऑफ इंटीजर्स, देखो Z आप जानते हो सबसेट होता है R का, Z मींस दिस 0 + -1 + -2, ठीक है ना। R Yes, पे sir. सपोज करो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, और Z पे दे दिया हमने सेट ऑफ इंटीजर्स, दे दिया सब स्पेस टोपोलॉजी। तो क्वेश्चन है क्या ये सब स्पेस टोपोलॉजी कोई कोई स्पेसिफिक टोपोलॉजी आती निकल के, या ये जो सब स्पेस टोपोलॉजी इसके ओपन सेट किस तरह के होंगे और बेसिस मेंबर किस तरह के होंगे, ये क्वेश्चन है। सेट ऑफ इंटीजर्स पे ठीक है। तो ये जो सब स्पेस टोपोलॉजी है
सबसे पहले आप बेसिस मेंबर कैसे देखते हैं ये बताओ, बेसिस मेंबर के बारे में क्या करते थे, बेसिस मेंबर कैसे निकालेंगे Z के, बेसिस मेंबर देखना क्या तरीका है डेफिनेशन। अगर मैं कहूं कि बेसिस मेंबर्स फॉर सब स्पेस टोपोलॉजी ऑन Z, ये क्या होगा, तो क्या कहोगे आप? सर जेड का इंटरसेक्शन जो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी होगी उसके मेंबर बेसिस के मेंबर का इंटरसेक्शन लेंगे, वेरी गुड। यानी जेड इंटरसेक्शन क्लोज ए टू ओपन बी। हाँ, तो R के स्टैंडर्ड बेसिस क्या होते हैं ये बताओ पहले। अच्छा, अगर मैं कहूं कि एक मिनट पहले, अगर मैं ये कहूं कि स्क्रिप्ट सब स्पेस टोपोलॉजी Z पे क्या होगा, तो Z को फिक्स कर दो और इंटरसेक्शन U वेयर U बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट T। स्क्रिप्ट T क्या है यहाँ पे, यूजुअल टोपोलॉजी ना ऑन R, यही तो होता है। और अगर मैं कहूं कि बेसिस मेंबर क्या होगा, बेसिस मेंबर ऑन Z, तो ये क्या होगा, Z को फिक्स करके सारे बेसिस मेंबर के साथ, किसका बेसिस मेंबर, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है ना। ये क्या टोपोलॉजी ऑन X, टोपोलॉजी ऑन R, मतलब यूजुअल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। और ये जो बेसिस मेंबर कहां से आ रहा है, बेसिस मेंबर ऑफ यूजुअल टोपोलॉजी, हाँ बेसिस मेंबर ऑफ यूजुअल या स्टैंडर्ड जो भी कह रहे हो, यूजुअल ऑन R। तो R पे बेसिस मेंबर किस टाइप के होते हैं, ओपन इंटरवल AB टाइप के होते हैं। ओपन इंटरवल, वेरी गुड, आप जानते हो, चलो अच्छी बात है। तो बस अब ये पहले डेफिनेशन लिख दिया, और ये ओपन सेट तो जनरेट हो जाएंगे ना, एक बार आपको बेसिस मेंबर मालूम हो तो उनके यूनियंस इस तरह के आ जाएंगे, तो ये तो आपको क्लियर है। अब ये बताओ कि जैसे मेरा क्लेम ये है कि इस पे जो टोपोलॉजी निकल के आएगी ना, जो सबस्पेस टोपोलॉजी हो ऑन Z होगी, वो बेसिकली डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी। सबस्पेस टोपोलॉजी ऑन Z इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए क्या दिखाना, बेसिस मेंबर क्या होना चाहिए, सिंगलेटन, सिंगलेटन्स, और हर एक सिंगलेटन ओपन होना चाहिए, तो आपको दिखाना है। सबस्पेस टोपोलॉजी ऑन Z इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो जैसे आप कोई भी n ले लो, n बिलोंगिंग टू Z, ठीक है ना। तो ये बताओ कि यहाँ पे दिख भी रहा है, देखो नंबर लाइन पे सिंगलेटन्स कैसे क्रिएट करोगे, अगर आपको सिंगलेटन्स ओपन दिखाना है तो, या सिंगलेटन्स को बेसिस मेंबर दिखाना है, तो उसे Z इंटरसेक्शन B टाइप का लिखो, जहां पे किसी ओपन इंटरवल से उसके इंटरसेक्शन में लिख सको सिर्फ सिंगलेटन है, लिख सकते हैं ऐसा। जैसे मान लो ये 0 है, यहाँ पे ये 1 है, ये -1 है, मुझे 1 को क्रिएट करना हो, यहाँ पे ये 2 है, तो ओपन इंटरवल आप इस टाइप का लो जो 2 से पहले और 0 के बाद कट कर रहा हो, तो उसका इंटरसेक्शन इस 1 के साथ क्या आ जाएगा, 1 ही होगा कि नहीं। यस सर, मैं ये कह रहा हूँ, ये तो क्लियर कट दिख रहा है, सिंगलेटन 1 को आप लिख सकते हो ना, इस Z को तो फिक्स करना है बाय डेफिनेशन, Z तो यहाँ फिक्स होगा। क्वेश्चन ये कि ये वेरी करना है आपको, ये इसको वेरी करना है, यहाँ पे ये फिक्स होगा। तो अब इसको वेरी करके सोचो कि सिंगलेटन वर्क कब जनरेट होगा, किस टाइप का इंटरवल ले लूं मैं। 1 से छोटा और 1 से बड़ा। हाँ दिख रहा है, मतलब इस तरह का ले लो, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, वेर एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन इसमें ले लो, हो रहा है कि नहीं। यस सर, या ऐसे लिख दो Z इंटरसेक्शन माइनस हाफ से 3/2, सॉरी हाफ टू 3/2, क्या है सिंगलेटन 1 तो ये इस फॉर्मेट का हो गया ना, Z इंटरसेक्शन B टाइप का होगा कि नहीं, बेसिस मेंबर हो गया सिंगलेटन। सिंगलेटन 2 को मैं क्या लिखूंगा, Z इंटरसेक्शन 2 माइनस हाफ 2 प्लस हाफ। सिंगलेटन 3 को क्या लिखूंगा, Z इंटरसेक्शन 3 माइनस हाफ 3 प्लस हाफ, लिख सकते हैं कि नहीं। यस सर, यस ओपन इंटरवल, तो देखो सिंगलेटन 1 भी ओपन हो गया, सिंगलेटन 2 भी ओपन है, सिंगलेटन 3 भी ओपन है। ओपन इसलिए कि ये बेसिस मेंबर भी तो ओपन सेट होते हैं, तो ओपन भी कहोगे और साथ में ये भी कहोगे कि ये क्या होंगे, बेसिस मेंबर भी हैं। Z पे जो सबस्पेस टोपोलॉजी आएगी उसके बेसिस मेंबर, क्योंकि आपने Z इंटरसेक्शन B टाइप में लिख दिया, सिंगलेटन 2 को हमने Z इंटरसेक्शन B टाइप के लिख दिया, सो वेयर B is a should be a basis member for the standard topology on R,
तो आर पे स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के बेसिस मेंबर कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स टाइप होता, तो उसी तरह के एलिमेंट का इंटरसेक्शन लिया है। सो सिंगलेटन 1, सिंगलेटन 2, सिंगलेटन 3, ऑल दीज आर कलेक्शन, देयर कलेक्शन आर बेसिस मेंबर। तो मैं लिख सकता हूं ये जो बेसिस मेंबर जो z क्या है, ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल n होंगे वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये सारे सिंगलेटन इसके क्या हो गए, बेसिस मेंबर। तो जब सिंगलेटन बेसिस मेंबर हो गए तो इनसे टोपोलॉजी कौन सी जनरेट होगी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो Z पे जो सब स्पेस टोपोलॉजी होगी वो क्या होगी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। आगे समझ में? यस सर। अच्छा, ओपन सेट्स कौन कौन किससे होंगे? ओपन सेट ये सिंगलेटन्स भी होंगे। ओपन सेट जैसे ये बताओ 1 2 ओपन है कि नहीं? इज 1 होगा 2 सर। ओपन? Yes. यस Yes. ओपन है। 1 और 2 से जनरेट हो जाएगी। वेरी गुड। इन टाउ Z। हाँ, तो 1 2 को आप क्या लिख सकते हो, इक्वल टू 1 यूनियन 2। इस तरह आप किसी भी सेट को जनरेट कर सकते हो, बट दिस इज नॉट अ बेसिस मेंबर। सॉरी, बेसिस मेंबर कह रहा हूं, वो तो ये बेसिस मेंबर तो और भी हो सकते हैं। असल में और को मैंने लिखा इसलिए नहीं क्योंकि जो बाकी सब सिंगलेटन से जनरेट हो जाएंगे। बात समझा कि सिंगलेटन से जनरेट हो जाएंगे। जैसे ये भी होगा, जैसे आप ये एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ा दो, अगर जैसे मान लो यहां से यहां कट करता अगर मैं, तो उसमें ये भी आ जाते, 0 1 2 भी आ जाते, 0 1 2 भी आ जाते, वो भी बेसिस मेंबर होते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये है ना कि जब सिंगलेटन्स हमें मिल गए एज ए बेसिस मेंबर, जब सिंगलेटन्स ही आपको मिल गए तो उससे टोपोलॉजी कौन सी जनरेट होगी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, तो इस पे आप वर्कआउट करेंगे और एक मैं क्वेश्चन दे देता हूं, ये खुद से सोच के रखेंगे। We know that Q set of rational number is subset of R. R पे स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ले लो और Q पे सबस्पेस टोपोलॉजी। ये बताओ सबस्पेस टोपोलॉजी Q पे क्या डिस्क्रीट होगी? No, sir. Is subspace topology on Q? Is subspace topology? Is subspace topology on Q induced from R? Induced from standard topology on R? तो थोड़ा सा इस तरह देखने की कोशिश करो, हर चीज को कॉम्प्लिकेटेड बनानी नहीं पड़ती। इस सबस्पेस टोपोलॉजी ऑन Q इंड्यूस्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन R और डिस्क्रीट टोपोलॉजी Z पे। तो जैसे देखा सबस्पेस टोपोलॉजी क्या निकल के आया था, Discrete. डिस्क्रीट निकल के आया, तो क्या Q पे भी डिस्क्रीट होगी? नहीं होगी No, सर। sir. कोई No. भी आर का वो जो ओपन होगा वो सिंगलटन नहीं करेगा, सिंगलटन बेसिस एलिमेंट नहीं देखो, होगा। अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो आपको ये शो करना है कि उसका हर सिंगलेटन ओपन है। तो अगर डिस्क्रीट नहीं है तो ये दिखाओ सिंगलेटन को आप y इंटरसेक्शन u टाइप में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको आप वर्क करके आना। कल क्यों नहीं होगा, कैसे लिखेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास है 10:52 ऑलरेडी हो गया, टाइम नहीं है। हिंट मैंने दे दिया है ना। इफ इट इज जनरेटेड बाय इफ द टोपोलॉजी डिस्क्रीट देन यू नीड टू राइट सिंगलेटन n, यहां n बिलोंगिंग टू q लो और इसे q इंटरसेक्शन u टाइप का लिखो। तो क्या u r पे स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है, तो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के बेसिस ओपन इंटरवल आते हैं, तो क्या a b इंटरसेक्शन q सिंगलेटन आ सकता है, ये क्वेश्चन है। No, sir. नहीं आएगा, बाकी एलिमेंट्स भी आ जाएंगे ना। और भी एलिमेंट्स होंगे, है ना, तो वो कैसे शो करेंगे ये आप लोग को इस पे वर्कआउट करके, है ना, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम सर। और 10:52 है, अगली क्लास कितने बजे है?